Okay, good evening, everyone. Good evening, all our viewers. Good evening, Vijay ji. Thanks for joining this webinar on momentum trading for FTU Trading and for the Momentum Group. A huge welcome to you all. Vijay ji, it will be best if you can share a little bit about yourself, and then we will start with the session. A minute. Okay. Meanwhile, to all our viewers, we have almost 140 people joined in here. Vijay ji is from Nasik and he's online now. Yes, please, Vijay ji, go ahead. Thank you so much, Nalin, for this invite, and it's a pleasure to be here and just trying to have a discussion and share whatever little I know about the markets. So it would be interesting to talk to everyone and see if anyone has any questions, or we'll go through it while we go along with the session. So I've been into the markets almost 9 years now, 9 to 10 years. I started in 2015, and just as everyone does with stock markets, everyone comes with a hope and an aspiration that मैं तो बस करोड़पति बनूंगा और क्या मार्केट क्या चीज है, एकदम इजीली अपन पैसा बना लेंगे, फटाफट अपने को स्टॉक मिलेंगे, स्टॉक्स ले लेंगे और वो मल्टी बैगर्स होंगे. So my thought process. So I should talk in Hindi or English. Which language is preferable? Mix is good. Hindi and English is good because we have a large group. So English is where people will be able to get both actually. Okay. No problems. That's fine. So yeah. So as everyone, the way we start in the market, that we come with the aspiration that हमको बहुत पैसा कमाना है, we want to make a lot of money and we want to be rich. But then same way I started, one day my broker, I had an account with HDFC, and they called me and they told me that you're already investing in mutual funds, so why not you go with trading account, and we'll help you, we'll guide you, we'll give you tips, and we'll tell you stocks that which are very good. So I was like, okay, no problem, we can give it a try. I had a BPO business by that time, and I was doing good. So I was making good money. So I had some savings, or I had some money that I could definitely deploy every month. So once I started, then I used to be in the night shifts. As everyone knows, BPOs are mostly about night shifts, US timing. So I didn't get much time in the day to explore things, or maybe focus completely on the markets. I was not able to do that. So I told them that whenever you have good stocks, you can recommend me. So while that journey started, I I liked that 2015 was where Modi's already came, and markets were booming and everything was doing good. So I tried my hand. I started with stocks. It was doing well, but then again, at a young age, maybe 25, 26, you want that thrill, right? You're not satisfied with 1 or 2% a month. You feel कि अरे यार ये मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो भी अच्छा चाहिए और चाहिए. I spoke to them and they were like, there is something that's called FNO, and that's called option trading. And you might call it luck or whatever destiny you can call it. 2016 was where weekly options started, especially for Bank Nifty. I think it was 2016 only that options has started, and they suggested me that एक का 10 होता है, 10 का 100 होता है, 100 का 200 भी होता है, 500 भी होता है, तो आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा. I was like, ठीक है, ट्राई करते हैं. I didn't have any idea. I mean, I would say I have negative knowledge about options and how it works at that time. But I just started, and we had money, so we started, and as beginners luck had to happen. I made 3-4 lakh rupees in a very short period of time. You could say in a month or two, and I was on top of the world. I was like, I have cracked this. बस खत्म, अब तो money बना लिया था, क्या अभी तो trading ही करना है. And
I had ki chalo night shift hai, uske baad I'll come home and I'll start trading 3-4 hours if I can give, then that will be very good. I can have good amount of extra income as well. But as tides turn, as we try to discover the markets, we get into that jigsaw puzzle, and then we find out ki, "Arey yaar, this is not so easy as it appears." Because when the broker was helping for few this thing for trades, after that you are on your own. It's not that they're going to help you or they're going to tell you. And then you also start exploring and you start using your own mind, and things didn't work out. In the first year itself, I lost 8 lakh rupees. I would say I was able to afford that because I had a business, successful business that I was doing, and I was able to afford that. But then again, that businessman mindset you have, or that ego that you have, ki somebody has taken 8 lakh rupees, so I need to recover that, or I need to make sure ki yaar ye paisa wapas to bhi aana chahiye. Not that I should make money from the market, but nahi, at least I should recover that. And in that discovery, or in that ego, you start getting deeper and deeper and deeper, right? You go deeper and deeper, and then uh, in the next 3 years, I almost lost more 32 lakhs. So total, I almost lost 40 lakhs by COVID. By 2020, I had lost 40 lakhs, and that got me into a trap of depression. Then psychology was not working, things were very bad, and over that journey, I realized many things, and that we will share with everyone. I hope many will be able to relate with the story. If I can hope, I'm sure almost everyone will relate to it, and that is the reason on a weekend we are seeing 225 people, 225 log hain hamare saath mein. Just wanted to confirm, Vijay ji, the recording is happening. Although I can see the button, recording is happening. The recording is there. Yeah, recording is already there. Means I'm sure everybody goes through that initial burst of beginners luck. अरे वाह, 1 का 5 हो गया, अब तो 5 का 5,000 करना है, right? But उसके बाद में 5 से -500 में जाता है. Then आंखें खुलती हैं. Some people they change जाते हैं. Some people they give up actually. Exactly. So again, to all the listeners, I would very humbly say that I was though I lost a huge amount of money, but still it did not hurt my finances, or I didn't have to take any loans, or I didn't have to go somewhere else to ask for money. So that is where I would say I was fortunate enough that कि मेरे को इतनी भी तकलीफ नहीं हुई कि मेरे को कहीं जाना. But you can call it depression, or you can call it a failure on an aspect where it hurts you, because I came from a very, very small background where I had to, for my if I have to go to my college, I had to deliver newspapers every day, where I used to get 500-600 rupees a month, so that I can at least pay for the expenses of my college. So from that situation, आप एक स्टोरी बता रहे थे कि जब स्लोप आता था तो आप इंजन बंद कर देते थे स्कूटर का, सो दैट. यस, हाँ, वो भी सिचुएशन देखा है कि टू व्हीलर समझो चला रहे हैं, और पेट्रोल डालने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो वो पैर से अपन थोड़ा सा स्कूटर को आगे लेके जाते हैं, और फिर जब भी स्लोप आता है तो अपन उसको बंद कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर के लिए तो भी पेट्रोल बचे. तो वो सिचुएशन भी देखी है. फिर ये भी है कि डोर टू डोर जाके मार्केटिंग की है, 20-20 किलोमीटर चल के भी मार्केटिंग की है. So, this is what happens when from such a humble background you come to such a success, and then again you see such a big downfall. So it hurts you mentally, it hurts you emotionally also. So that is what the situation happened. But once by 2018-19, I had realized quite a few things, wherein I understood that to survive in the market, you cannot just go and think yeah मैं सचिन तेंदुलकर हूँ and I can start hitting the balls for sixes, and this will just happen. It is not like that. You have to they say that 90% of the traders lose money. So to make money, or to be what you can say not in loss, you have to land in the 10%. So that is the kind of difficulty, or that is the kind of toughest atmosphere that we face in the world of trading, where algorithms and computers are taking you for a ride every time. So
by 2018-19 I had realized कि नहीं भैया ये इतना easy नहीं है, and I'll have to work hard, I'll have to study a lot to at least have a chance of trying to get the money back. But again, another thing I realized by 2019-20 was that if I think about continuously about thinking that, you know, my goal is to recover my money. Not my goal is not to be a trader, or my goal is not to be excel at this career or excel at this profession. If my goal is always going to be that, you know, if my goal is always going to be that I just have to recover my money, I am not going to make it for sure, or I will not make it. My focus should be step by step, go through the process, learn about the process, understand yourself, observe yourself, and then slowly you know, you go to a situation where you start making small amount of money. Not that, you know, that thought process can never be there ki I want to recover the money. So Vijay at this point, by strange coincidence that I was reading, आज मैं एक किताब पढ़ रहा था Atomic Habits by James Clear, और उसमें इन्होंने यही 3 चीजें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि जो हम लोग का मॉडल होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, उसमें सेंटर होता है आइडेंटिटी, नेक्स्ट रिंग होता है प्रोसेस, एंड थर्ड होता है आउटकम। तो आपने जो बोला, आपका आउटकम है कि आपको प्रॉफिटेबल होना है या लॉस रिकवर करना है, आपका प्रोसेस है कि मैं सिस्टम बनाऊंगा, और आपका आइडेंटिटी है कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो हम लोग ज्यादातर लोग जो करते हैं वो सिर्फ आउटकम पे ध्यान देते हैं, अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। सो आपने बात अच्छी बात बोली कि रादर देन लुकिंग एट मेरे को लॉस रिकवर करना है, आपने अपनी आइडेंटिटी पे फोकस किया कि मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। सो दैट आई थिंक दैट इज अ बिग चेंज इन द माइंडसेट जो पहले था एंड लेटर ऑन जो आपने किया उसमें। Exactly. So that is the changing point, or that is where things started changing. And then I started, or I thought about, you know, कि let's take baby steps जहाँ पे I can try to make 2,000 rupees a day. तो वो टाइम पे एक्चुअली क्या होता था 18-19 में, I used to watch Z Business, and then Anil Singhvi used to say कि आज के 2,000, right? So that mindset came from there कि अरे यार चलो ये अगर बोल रहे आज के 2,000 तो I will start from there at least. 2,000 से तो शुरू करते हैं कम से कम. So that was the thought process, and by 2020 I would say COVID was a blessing for me in disguise. Though it was not good for the entire world, but I would say in a way it helped me discover me as a person. And when our back is against the wall and you don't have any other option but just to, you know, get yourself on the right track. By COVID, let's say start of COVID, I started being a little. I started taking some profits, maybe 1 lakh rupees a month or maybe 2 lakh rupees a month, and slowly by, let's say, September, October, that is where I started following processes, and I started focusing on risk management aspect, money management aspect, and that is where I started being profitable. And September, October of 2020 was the time where I turned completely into a profitable trader. And then again, obviously, after that, a new journey started wherein your survival as a trader was more important than you making profits. So then that is where I started. Yeah. So how do you want to start? First, since we started with the risk management, should we start with risk management first, or should we start with setup and then we go to risk management? जो आपको सही लगे उस तरह से या मैं ऐसा बोलूंगा कि सेटअप और वो तो सबको पता है दुनिया में. आई वुड से ज्ञान भरा पड़ा हुआ है सेटअप से रिलेटेड. ओके, बट मनी मैनेजमेंट इज समथिंग दैट इज नॉट टॉट वेल, और दैट many people forget, or you know, their emotional drive takes them away, right? So what I would say is ki, let's talk about money management and risk management first. Let's cover that aspect first, and then we can move on to the setup part. Yeah, absolutely. Please. Yeah. Okay. So as we discussed that, you know, my main problems were I didn't have a process, I didn't have a risk management module that I can work on, or I didn't have any kind of process by that time.
So once I realized risk management or the money that we have, okay, in our account, that is not only ours. When we are married, when we have kids, that money is not only ours, or as an individual, it is not mine. It is everybody's in my family, that money or that amount that is there in my trading account. So I have to be very, very conscious about how I trade or what I do with that money, because if I lose that money, that Right. affects not only me but the 4 or 5 people that I have behind me, right? So, So that Vijay is, ji, यहाँ yes, पे if he can do both mix English and Hindi, so yes, it sure, will appeal to everyone actually. definitely. तो हाँ, मैंने यही सोचा कि मेरे पास तो कोई प्रोसेस है नहीं था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हो कि रिस्क मैनेजमेंट या फिर कोई फाइनेंस वाली ज्यादा किताबें भी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने ये सोचा कि हमारे और मेरे जो 2 मेंटर्स हैं उन्होंने भी ये बताया था कि अगर हमको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में जो कैपिटल है वो कैपिटल कैसे मैनेज करना है, या फिर वो ट्रेडिंग को सर्वाइव करने के लिए उसको कैसे करना है, ये हमको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। Absolutely. Yeah. So I'll share one thesis that I follow and that might help everybody here also. So give me a moment. I'll just share a Word document, or we'll just write it in a Word document. And I feel that many would be able to figure out where they are having an issue in their trading journey. Okay, first of all I want to ask everyone here, whoever is we have I mean almost 300 people, how many are into option buying? How many do option buying? We are looking a lot hands raised, and Yeah, buying. significant Okay. people are raising actually. Significant, right? So let's say 50% are option buyers. 50% are option buyers, or some are new to option buying, or some are just trying it out. Okay, no problem. So 50% are option buyers, right? Now let's take as a small poll wherein how much is your actual capital, not the amount that you deploy, but how much is your actual capital. If everyone can share. Okay, 20 lakh, 5 lakh, 50,000, 50,000, 10 lakh, 1.5 lakh, 4 lakh, 5 lakh. Okay, 2 lakhs, 1 lakh, 1.5 lakh, 1 lakh, 3 lakh, 10 lakh. Okay, so let's say on an average we have most of the people, if you consider, let's take an average of 3 lakh as a capital. Okay, this is the total capital. This is not what I'm talking about as deployed capital. Please understand, there is a huge difference between deployed capital, that means the capital that is in your trading account, and there is a difference between the capital, that the overall capital that you have, right? Why I say that is because when you start any particular business, okay, अगर आप कोई भी business शुरू कर रहे हो, तो आप समझो आपको कोई business शुरू करना है, तो आप पूरे के पूरे पैसे वो business शुरू करने में पहले दिन नहीं डालोगे, right? आप क्या करोगे कि आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, और you at least need to know that your business needs to run for a few years without you making profit. At least not few years, but at least a year, if you think in that prospect, right? So I will explain how we can work on that. So 3 lakh is the average capital, right? Now, I don't know if anyone knows or everyone knows that option buying is also leveraged. If you look at in a mathematical point of view, option buying is also leveraged. Okay. Now, how leveraged? Because an index moves 1%. What is the percentage of move will happen in an option? Let's say at the money or in the money option, it will be percentage wise, it will be huge. So that means you're already leveraged. Though you will say कि अरे नहीं मैंने तो 1 ही लाख डाला था तो 1 लाख का ही मैंने पोजीशन लिया तो लेवरेज कैसे हुआ? ऐसे नहीं होता. You have to compare with the percentage of index move and the option that is going to move. Okay. Now
3 lakh ऑप्शन बाइंग, सब लोग बोलेंगे हाँ दिस इज इनफ कैपिटल, आई कैन डेफिनेटली ट्रेड ऑप्शन बाइंग एंड everything will be fine. But I would kind of differ from that statement ki 3 lakh or the amount is not enough. Okay, why I think so is because when an option seller is trading, why they say that option seller is more powerful than option buyer, or why option seller is more important, or why option seller has a more edge than an option buyer. This is the reason why. Let's say you have 3 lakh capital. How many lots can you trade? How many lots can you trade as an option seller? Naked, huh? I'm not talking about hedge or anything. We are just talking about naked positions. बैंक निफ्टी में 3 लॉट आएगा ज्यादा से ज्यादा, आई थिंक, राइट? निफ्टी 2 में lot, 4 या 5, 2 लॉट 1.5 है, लाख रुपए लगता है, right? राइट। Only 2 lots. बराबर. So I want to ask everyone here कि if you're option buying 3 lakh capital, if you're option buying, how many lots do you think you will take if you have capital of 3 lakhs? How many, what percentage of that amount, what percentage of 3 lakhs will you deploy, or do you deploy? 10%, right? 5 to 8 lots, 10 lots. Exactly, 20%. Some are saying 50% of the amount. Barabar? Let's take. I know for a fact that many will at least deploy 30 to 40% or 50% at least. Barabar? So if you take 50%, that means that is 1.5 lakh rupees. Okay. Now out of this 1.5 lakh rupees, at the money, if let's say if an option is of 300 rupees, how many lots can we get? 4.5, around 30 lots. That way. Barabar? 30 lots. Yeah. So this is the first or the biggest mistake an option buyer does. The first and the biggest mistake. Why? Because a seller is taking 2 lots. A buyer is taking how many lots? 30 lots. Where is the risk management? Seller के लिए तो already risk management the exchange has done. Exchange has already done the risk management for the option seller. Why? Because 3 लाख में भैया तू 2 ही लॉट ले सकता है, उससे ज्यादा ले मत. Yes, already exchange ने ही बोल दिया है. But अब buyer को बोला है कि exchange ने कि कितने लॉट तू ले सकता है ये अमाउंट में? नहीं बोला है. तो buyer को क्या करना है? A buyer has to himself manage the risk. And how can I as a buyer manage the risk, or how I can figure out the risk is by following what the risk management has been set by the exchange. Point है? Everyone, hope everyone is able to understand this point. Guys, बहुत important point है. अगर समझ में नहीं आया, so we can just do it again. I can reply it. Yeah, I can tell you So in maybe Hindi. what we can do is, just एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ. एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ. हाँ, देखो, जब कोई ऑप्शन सेल करता है और किसके पास अगर 3 लाख रुपए कैपिटल है, ओके, तो अगर ऑप्शन सेल करना है तो तुम बस 2 लॉट ऑप्शन सेल कर सकते हो 3 लाख रुपए में. बराबर? 3 लाख रुपए में ऑप्शन सेल अगर नेकेड करना है तो बस 2 ही लॉट कर सकते हो. बट अगर एक ऑप्शन बायर के पास 3 लाख रुपए कैपिटल है और उसमें से वो ये सोचता है कि उसको ट्रेड में 50% हो या 10% भी हो, अगर 10% भी हो तो वो कितने लॉट्स कवर कर सकता है? वो बहुत ज्यादा लॉट्स ले सकता है. तो प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले जो भी ऑप्शन बायर मार्केट में आ रहा है और उसको ट्रेड करना है, तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता उससे. क्यों? क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर को तो ऑलरेडी एक्सचेंज ने ही बता दिया है कि भैया ये तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है और तुमको यही फॉलो करना है. बट ऑप्शन बायर को तो ऐसा कुछ दिया नहीं है. ऑप्शन बायर तो बस जितना खरीद सकता है उसके पास जो अमाउंट है उससे वो खरीद लेगा. बराबर? तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू कंपेयर दिस 30 लॉट्स विद 2 लॉट्स, द रिस्क रिवॉर्ड विल गो कंप्लीटली फॉर अ टॉस. क्यों? क्योंकि 30 लॉट्स मींस कितना क्वांटिटी होता है नलिन जी? 30 लॉट्स में आपका 450. बराबर? लेट्स से ऑप्शन इज 300 रुपीज ऑप्शन, 450 क्वांटिटी. अगर आप 20 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाते हो
तो कितना अमाउंट होता है एक ट्रेड के लिए? कितना अमाउंट होता है? 9,000 का हो गया बराबर, 9,000 रुपए लॉस। बट आप अगर ऑप्शन सेल करते हो 2 लॉट 300 वाला, तो कितना हो गया? 60 रुपए, कितने पैसे? नहीं, आप 600 रुपए। लूज कितना करो? 20 पॉइंट अगर लूज कर दिया आपने, तो 60 रुपए जाएगा, 30, हाँ 600 रुपए जाएगा। दैट्स इट। दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर तुम ये समझ गए तो दिस विल बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू एज एन ऑप्शन बायर ऑल्सो एंड ऑप्शन सेलर ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज वेयर ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती। इफ यू मैनेज दिस रिस्क प्रॉपर्ली, that is where you will be able to survive in the market for a long time. If you manage your risk with this thesis or this module. So what an option buyer needs to do is, let's say if you have a 3 lakh capital, okay, I should only have 15 to 20,000 in my trading account. I'm not saying in your bank account, but 15 to 20,000 only has to be in your trading account. And out of that, you have to manage your position as per your an option seller. Okay. So this is the risk management perspective that I understood after a long time, after losing a lot of money. Okay. Exactly. So the deployed has to be only 5 to 10%. The deployed capital has to be only 5 to 10% max. That is what my thought process is. If you work on that and then you put up a stop loss, or you put up what you can say a points per trade, you can calculate points per trade on your trading this thing. So in trading you can do swing trading, you can do short term trading, you can do scalping, you can do momentum, either whichever you feel is comfortable. The only thing is, when you're doing short term momentum or you're doing intraday, the risk reward is going to be higher. If you're doing let's say positional trading, okay, if you're doing positional trading, then the reward will be higher, the risk will be less, but the percentage of return or the percentage that you will win, the winning percentage will be lesser when you're doing positional trading or swing trading. Why? Because the risk reward is higher. So when I'm doing option buying and when I'm doing on an intraday level, how I do is, I have 1 crore capital. Out of that, I will only keep around 7 to max 10 lakhs rupees in my trading account. That is the max I will keep in my trading account, 7 to 10 lakh rupees. And out of that, then I will start building my position. So तो how आप I will 7 think to is, 10% ऑफ योर कैपिटल रखते हो अपने साथ अकाउंट? हाँ, ऑलवेज अकाउंट में, उससे ज्यादा कभी नहीं रखता। And अभी just ये तो over रखता, here, हाँ, yes, because somebody just staying here, somebody is asking कि आपको एसएल और टारगेट किस तरह से सेट करते हो आप उस चीज के लिए? हाँ, वो तो अपन शेयर करेंगे कि टारगेट और Okay. एसएल, वो तो सेटअप पे, that all depends upon the setup. Whatever setup I am following, I will tell you the setup also, I will show you everything also. But I just want everyone to be patient because I understand कि सबको ये चाहिए कि मेरे को ये बताओ कि जादू की छड़ी किधर है। सबको ये So, चाहिए but कि अरे हाँ, ट्रेड किधर absolutely. लेते हो, किधर छोड़ते हो, ट्रेड कैसे लेते हो और कैसे नहीं लेते हो, बस मेरे को ये बताओ। ये मत बताओ कि मेरे को मेरा पैसा कैसे मैनेज करना है, ये किसी को नहीं सुनना, या फिर ये किसी को अच्छा नहीं लगता। सबको चाहिए कि अरे इसने 5 करोड़ कमाया है ट्रेडिंग में, तो इसके पास कोई तो भी जादू की छड़ी है जो अपने को बताने वाली। वो बता दो आपने। हाँ, वो पहले बता दो, बाद में फिर अगर हम जज करेंगे कि वो सही है कि नहीं, वो ठीक है। तो 7 to 10 lakh rupees is what I deploy. Okay. So when I have 1 crore capital, I will think as an option seller. अगर ऑप्शन सेलर है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी ट्रेड करने को मिलेगा? 1800 या 2700. So when I'm trading on normal days, let's say after expiry, let's say Bank Nifty expiry is on Wednesday. If I'm trading on Thursday or Friday or Monday or Tuesday, this is the quantity that I will trade with. And that is how I am able to manage my risk. And that is where the emotional risk or the stability that you have in your mind
That is where it will come. Remember one thing very carefully, or everyone, if you can go to your P&L statement, whoever has been trading, go to your P&L statement and find out the days where you have lost a lot of money, or the days where you have lost maximum amount of money. Those losses will not be because your trade was wrong. It was because you had a higher position sizing. You will, And it will be likely averaging भी किया होगा लोगों ने. averaging भी किया होगा, and that would be because you you waited in the trade for maybe 50 points, 70 points, 100 points, या फिर you waited for that option to go to zero because you lost faith and you lost कि नहीं यार अब नहीं होगा, अब ये तो नहीं आने वाला, या फिर you will just hope and pray कि ये ऊपर आ जाए और ये मेरे को profit दे दे. Is that right? Most of your losses will happen. If you resonate with this, just say something so that we understand. Yeah, let's have a a good conversation so that it will be easier for me to relate to everyone, and then I can help everyone on that basis also. Perfect. So exactly. So this module, or this risk management module that I'm sharing with all, if you follow this risk management module, then obviously it will help you a lot in managing your risk, managing your emotion. I understand पैसा जितना चाहिए तुमको उतना नहीं बढ़ेगा, मेरे को पता है सबको करोड़पति बनना है, that is a given, no problem. But करोड़पति बनने को 1 साल नहीं लगेगा, 5 साल 10 साल लगेंगे. So the thing is, first if you follow this, then there is at least a chance that you will survive in the market. So I run a prop desk. Okay, I hope everyone knows I run a prop desk, and when running a prop desk, we deal with a lot of Gujaratis. Okay, and they tell us only one thing, only and only one thing. वो बस यही बोलते हैं कि हमको ये नहीं मालूम कि हम कितना पैसा बनाएंगे, हमको ये नहीं पता कि हम कितना पैसा बनाएंगे, हमको बस यही पता है कि हमारा दुकान 10 साल चलना चाहिए. What they're saying is that I just want to make sure that my shop that I've opened, or the business that I've opened, that should run at least for 10 years. That's it. बाद में पैसा बने नहीं बने मेरे को नहीं पता, बट अगर मैं दुकान खोलूं तो मैं 10 साल मेरा दुकान खोल के रख सकता हूं. इतना मेरे में ताकत होना चाहिए, इतना मेरे में पेशेंस होना चाहिए, और मेरा पैसा भी उतना मेरे पास होना चाहिए. 1 मिनट है नलिन जी, मैं मेरा लैपटॉप जस्ट चार्जिंग, 1 सेकेंड. ठीक है. Meanwhile, guys, हम आपके क्वेश्चंस को मॉनिटर कर रहे हैं, एंड सिंस द डिस्कशन इज गोइंग ऑन इन गुड फ्लो, वी विल सिंथेसाइज एवरीथिंग, एंड इन केस आपके क्वेश्चन unanswered रह जाते, if any of the questions are left unanswered, please ask again so that we can capture everything. I hope you are liking the direction in which the conversation is going. We will come to the exact setup, जो setup है विजय जी का, in after this is done. So that, but this is the emotional and emotional discussion which is going on, and this is something which almost everybody has an issue with. So that is the reason we are continuing with this. For prop desk, I will share the discussion, and I will share the connection details after the session in this chat only, so that आप बाद में इनसे contact कर सकते हैं. Mohanty ji, we will make sure it will not get time cramped, but let the discussion go deeper, even if we have to cut short on some part. But this is risk management is very important, especially जिनको option buying करना. So we will try and make sure that whatever we have looked for इस event के लिए उसको capture कर रहे हैं इसमें. Okay. Yeah. ठीक है. So this is the starting point for everyone who wants to get into option buying. The starting point should be this risk management that I expect, or I want everyone to follow. This is where you will be able to understand how I can
be able to survive as a trader in this difficult market, and how I can be into this business. Because see, what I've observed is ki, maximum people who have been into trading, they have been successful only when they are being able to survive in the market. ये जो broker का जो rule होता है 90-90-90, what is this rule about? कि 90% of the people lose 90% of their money in 90 days. So what market is telling you is, boss, if you follow risk management and if you are able to be into this market for 3 to 4 years, if you can be into this market for 3 to 4 years, then there is a darker chance that you will be, or there is a strong chance that you will be able to excel in this business. Market is just asking 3-4 years of your time and your effort, and once you do that, then definitely you will be able to do better. Nalin ji, you are already an MBA graduate, right? So how many years did you spend to be an MBA graduate or to be a graduate? 3 साल आपको अंडरग्रेड करना पड़ता है, and then you don't get into MBA, good MBA without work experience. तो आप कुछ काम करोगे because खर्चा भी बड़ा होता है. So unless you graduate, आपको मिनिमम 5 साल तो पढ़ाई में देना ही देना है, प्लस 2 से 3 साल वर्क एक्सपीरियंस. तो अगर आप MBA से ग्रेजुएट कर रहे हो तो मिनिमम 7 से 8 साल तो आपने दिए ही हैं बिफोर यू ग्रेजुएट आउट, including padai and work experience. Exactly. That means you're giving 8 years of your life so that you can stand a chance to make maybe 50,000 a month or a lakh rupees a month. Yeah. Isn't it? But what is our expectation as a trader? What do we expect as a trader? Ki from day 1 or day 2 or maybe within a year, you should start making money. Isn't it? Yeah. That is what our expectation. So that expectation is where we as retail traders falter. And if we follow some kind of risk management which revolves around this, obviously everyone is going to make mistakes. We are going to have psychological issues, no problem. But we can limit that with this kind of risk management if we follow that. Okay. Now risk management part is done. Now we can move on to another part. Yeah, please go ahead. Yeah. Okay. So setup. अभी बहुत लोगों को ये इंटरेस्ट होता है कि अरे ये ऐसा क्या यूज करता है कि ये प्रॉफिटेबल है. आई डोंट यूज एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स. मैं तो बहुत ज्यादा इंडिकेटर भी यूज करता हूँ, एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट ऑल्सो. आई विल शेयर दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम. पहले एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. Okay. Everyone can see this? Yes, we can see the screen. Okay. तो पहली चीज है, you use just the Zerodha platform, no expensive trading view. Expensive तो नहीं, but हाँ trading view है मेरे पास. trading view है, अभी afford कर सकते हैं इसलिए 2-4 स्क्रीन है, which is fine, no problem. But for your setup उसका जरूरत नहीं है. एक्चुअली अगर ट्रेड करना है तो मैं ये स्क्रीन देख के भी ट्रेड कर सकता हूँ. एट द एंड ऑफ द डे वी ट्रेडर्स आर स्लेव्स ऑफ प्राइस. दैट इज व्हाट आई से. हम तो भाव के गुलाम है. वॉट एवर द प्राइस इज सेइंग, वी मूव टू दैट डायरेक्शन. ओके. सो आई वुड से दिस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज आजकल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. आई अंडरस्टैंड दैट. And many people do very good price action trading, or not just price action, but they do very good trading without indicators. But what I feel as a trader, or especially as an option buyer, what I feel is ki for me indicators are important. And when I am doing option buying, option selling is a very different perspective or different field. But when I am doing option buying, okay, what I am focusing on, I'm focusing on sprints, small sprint. मेरे को क्या चाहिए कि छोटा छोटा जंप कर सकूं, या फिर छोटा छोटा एक पाथ है, उस पाथ को मैं बस फॉलो कर सकूं. राइट. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एज अ ट्रेडर. कि when I have indicators, or when I'm using moving averages,
it gives me a perspective कि चलो 20 से 50 जाएगा, 50 से 100 जाएगा, 100 से 200 जाएगा. So I always have that in my mind कि अच्छा, once this EMA is crossed, then I look for this EMA, then I look for this EMA, and then I look for higher this thing. So I have developed my psychology around these indicators, or I have developed my psychology around this setup. Okay. So I remember I started using moving averages by 2018-19, when one of my friend, he had seen some video of a trader in US who used to use moving averages, and उसने बोला था कि अरे तुम ये EMA use कर, ये अच्छा है. So I started using that. I didn't have much, a lot of knowledge about technicals and everything. When I started trading technicals, I used to see कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये इधर लाल कैंडल आए तो इधर पुट बाय करने का, और ये ग्रीन आए तो इधर कॉल बाय करने का. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, isn't it? But then when we dig deeper, and when we try to understand why this candle is made, what is the purpose of this candle, what is the purpose of the levels that we mark, or what is the purpose of a buyer or a seller, that is when you try to understand ki there is a psychology behind the price. Because if there is a algorithm that is trading, that algorithm has been made by a human. So he has set up some parameters, he has set up some kind of mathematical formula behind the psychology of the price movement. This word is very important. Can we get into this, what all these moving averages Sure. you are using here? Sure. So I'm using basic 20 moving average, 50, 100, 200. These are the moving averages that I'm using. Okay. And then I'm using VWAP also, that is volume weighted average price. So for intraday, I feel that, or I have worked out the setup based on this. And I would say कि every setup works. There is not something कि नहीं ये setup काम नहीं करता, ये setup ऐसा है, या फिर this setup does not work. What I feel is कि every setup has a time, or every setup has his own way of moving, its own way of moving. And we have to, as traders, we have to adapt to those indicators, or to adapt to those price movements. When we adapt to that, and when we start accepting that the setup is not there, or setup is not made that it should work every time. The setup working or not working, it is in our hand, not in the market's hand. अब सर नासिक से बॉम्बे जाने को वंदे भारत भी जाती है और नॉर्मल ट्रेन भी जाती है, हर एक का अलग टाइम होता है, पता होना चाहिए कौन सा ट्रेन कब पकड़ना है. बस सिंपल है, वही है. और ये भी पता होना चाहिए कि वंदे भारत से जाएंगे आज के डेट में तो 4 घंटा लगेगा, और ड्राइव करके जाएंगे तो 6 घंटा लगेगा. राइट. हाँ. तो yes, I'm using simple setup EMAs. If you can look at, you can एंड ये copy it, 5 or मिनट if के you want. चार्ट पे है, राइट? हाँ, फिलहाल ये तो 5 मिनट पे है. तो 5 मिनट, सॉरी 20 MA, 50 MA, 100, 200. इसमें से I would say कि 200 and 20 are my favorite ones. My favorite ones are 200 and 20. And VWAP is one of my favorite indicators also, because intraday it helps a lot to understand what is the this thing. ठीक है. Now my trading revolves around a few things. I'll share that as well. We can look at 1 hour. Okay. So how I build my setup, or how I build my thought process around the setup. Okay. For example, let's say we are in a daily time frame. Everyone can see the daily time frame chart, right? Okay. So when a trend is continuing, right? If you can, very simply, what we have to understand is, if the moving averages are pointing out in one direction, that means the market is bullish. If it's pointing out in the other direction, if it's pointing out on the downside, that means bearish. And if all the moving averages are together, like for example this one, ठीक है. हाँ, अगर sideways है, so how do we understand sideways? This is how, if the moving averages are coiled together, and if the moving averages are coming together,
that is a very clear example that the market is sideways. या फिर यहाँ So पे भी just आप to देख सकते हो. review, Yeah. ये आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कि मूविंग एवरेजेस का डायरेक्शन किस तरफ है. अगर किस ऊपर तरफ है है. तो इट्स अपवर्ड ट्रेंडिंग. अगर मूविंग बराबर. एवरेज साथ में है तो इट इज लाइकली कंसोलिडेशन साइडवेज, और डाउनवर्ड है तो इट्स अ सेक्युलर डाउनवर्ड ट्रेंड. यस, सिंपल. तो इससे क्या होता है कि एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि तीन ही चीजें होने वाली है. एक तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक तो मार्केट नीचे जाएगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज रहेगा. तो व्हाट आई हैव डन इज आई बॉइल डाउन इनटू थ्री ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, so that I want to be precise in my trading. If I want to be precise in my trading, मेरे को जितने कंफ्यूजन दूर करते आएंगे मार्केट के लिए उतने मुझे कम करने हैं, या फिर मेरे को मेरा थॉट प्रोसेस एक फोकस में लाना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ट्रेंड क्या है वो मुझे पता करना है. नाउ व्हाट दिस इज टेलिंग अस इज कि once 20 EMA is breaking, okay, if you looking at this 20 EMA, this is coming down, this is getting flattened out, this is not yet, and this is coming up. Okay, so for me as an understanding, what it tells me is once 20 EMA is broken, then that is a pause in the trend. It doesn't mean that market is bearish, but there is a pause in the trend. I would say market is bearish or it is going into a downtrend, especially on a higher time frame, is when it comes below the 200 EMA. So very clear setup you can think about is कि EMAs अगर ऊपर है और trending है, there is a good gap between all the EMAs, that means it is trending on the upside. और अब Vijay ji, 20 EMA break. since we are doing we can open the chat for the Q&A at the end so that the questions can come at. So अभी थोड़ी देर chat बंद कर सकते हैं क्या आप? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं. ओके, चैट का ऑप्शन तो नहीं, बट ठीक है, कोई इशू नहीं. मैं तो नहीं देख रहा हूँ चैट. आई एम नॉट एबल. ठीक है. तो once you're on the daily time frame, okay, things you can understand is कि once it breaks the 20 EMA, there is a pause in the momentum on the upside, and now it is going into a range bound scenario where if it's come down. So now that it is come down, okay, how I will build my thought process around this is कि Bank Nifty has lost momentum on the upside, but it is not turned into negative territory, or it's not going into bearish territory. So in this situation, when the momentum is lost on the upside, what I will think of is short term trades. कि जब मोमेंटम है तो मुझे ये सोचना है कि मैं ज्यादा पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकता हूँ, या फिर मैं एक डायरेक्शन में कैसे ट्रेड कर सकता हूँ. बट जब 20 में ब्रेक हो जाता है तो दैट इज अ लॉस ऑफ मोमेंटम ऑन द बुलिश साइड. सो व्हेन द लॉस इज देयर ऑन the momentum is losing on the bullish side, that means I have to be a short term trader, or I have to look for short term scalping opportunities. So this is the thought process. If let's say अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो ये थॉट प्रोसेस से मुझे शुरू करना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है. अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्लियरिटी पता चल गया कि 20 में ब्रेक कर दिया है, नीचे आ गया है, तो मुझे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. तो अभी मैं डेली से जाता हूँ फिर 1 आवर पे. अभी 1 आवर देखो मुझे क्या बता रहा है. 1 आवर मुझे क्लियर बता रहा है कि सारे मूविंग एवरेजेस नीचे है. 20 EMA के भी 20 EMA नीचे है, 100 EMA नीचे है, 50 भी नीचे है, और 200 भी नीचे है. ओके, तो मैं जनरली और एक क्राइटेरिया क्या रखता हूं कि जब भी 200 EMA के डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब भी 200 EMA के नीचे होगा तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा, और आई विल नॉट बी ओवरली बुलिश. दो ऑन अ हायर टाइम फ्रेम इट माइट बी वेरी बुलिश. लेट्स से अगर तुम वीकली देखोगे, मंथली देखोगे, बट डेली पे ये क्लियरली बता रहा है कि देयर इज अ पॉज इन बुलिश मोमेंटम, एंड आर्ली इट इज टेलिंग मी दैट it is already below the 200 EMA. That means it is in a very good consolidation, and I should be looking, or I should be open. My mind should be open on both the sides. That I should be looking for a in a bearish trade also. I should be looking for a bullish trade also. Now I will be very good bullish only when it starts crossing the 200 EMA on the hourly chart. तो यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा एज अ ट्रेडर, how I will dynamically adjust myself is कि I'll be looking for one thing is that is scalping trades.
एंड देन आई विल बी लुकिंग फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड ऑल्सो. दैट मीन्स अगर ऊपर जा रहा है या फिर एक लेवल पे आ रहा है जहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, आई विल बी लुकिंग फॉर shorting the market on the upside also. And if it's going on the downside, if it's coming downside and if it's coming to a support level or a major level, then I should be looking for a bullish trade also. So I'll open my mind to both the sides. Yes. तो एक बार समराइज के लिए, ऑन द डेली टाइम फ्रेम में अगर वो 20 EMA के नीचे आ गया, सो यू आर नॉट बुलिश. मार्केट हैज ब्रोकन द अपवर्ड मोमेंटम, ऊपर का मोमेंटम उसने तोड़ दिया है. देन आप आवरली टाइम फ्रेम पे आते हो एंड देन यू सी कि उसमें EMAs किधर मूव कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन में है, राइट. एंड नाउ अगर प्राइस इज बिलो 200 EMA, देन you are not at all bullish. You are looking at momentum, small scalping trades. Small scalping trades, yes. Okay. हाँ, तो ये हो गया थॉट प्रोसेस कि अगर ठीक है मुझे मंडे को काम करना है तो ये हिसाब से मैं मंडे को काम करूंगा. अभी मेरे लिए या फिर व्हाट आई विल बी थिंकिंग इज कि वेयर द मार्केट ओपन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली. तो मुझे क्या करना है, मुझे 15 मिनट पे जाना है. 15 मिनट में अभी क्या हो गया है, मुझे रेंज डिफाइन करनी है कि मैं कौन सी रेंज में ट्रेड कर सकता हूँ या फिर व्हाट इज द फेवरेबल रेंज फॉर मी टू ट्रेड. ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स है, वो कैसे पॉजिटिव है, तो आई विल सी कि इफ देयर इज गोइंग टू बी अ गैप अप और नॉट. इफ देयर इज अ गैप अप और इफ देयर इज मोमेंटम अराउंड 51,600, okay, my level that I should be looking for on the upside is 51,600. If it's opening around 51,600, I will be cautious or I will not be overly bullish. Why? Because it will gap up 300 points. Now this is the interesting point about EMAs. आप देख रहे हो ये 50 मिनट का EMA 200 EMA कहाँ पे है, 51,600 पे है, राइट. 51 ये 15 मिनट का है. और हम देखेंगे 1 आवर पे, 1 आवर पे भी कहाँ पे है, सेम बराबर. दैट मीन्स देयर इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ EMAs. जब EMAs का कन्फ्लुएंस है तो दैट इज गोइंग टू टेल मी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट when market comes to this area, around this area 51,600 or 51,700, I should be expecting some kind of cool off in the momentum or some kind of rejection or a base or a range should be made. So if it opens around this area, मैं bullish नहीं रहूंगा but मैं bearish भी नहीं हूँ. I will wait for it to retrace or at least fill the gap or make a range. अगर वो range बना देता है then it will be a better opportunity for me to trade. Okay. तो हम फिर एक बार ये थॉट प्रोसेस बन गया कि मेरे को ट्रेड कैसे करना है या फिर मेरा स्ट्रैटेजी किसके अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए. आइदर आई शुड बी लुकिंग फॉर अ मोमेंटम ट्रेड, आई शुड बी लुकिंग फॉर ब्रेकआउट ट्रेड्स और आई शुड बी लुकिंग फॉर स्कैल्पिंग ट्रेड्स. ओके, ये एक बार मैंने थॉट प्रोसेस बना लिया तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू कम इनटू द मार्केट एंड ट्राई टू स्टार्ट ट्रेडिंग. नाउ 5 मिनट पे देख लिया हमने, 50 मिनट पे देख लिया, 1 आवर पे देख लिया. तो अभी यहाँ पे 5 मिनट क्या बता रहा है, 5 मिनट इज सेइंग कि इसने 200 EMA क्रॉस कर दिया है और ये अभी ट्रेंड को शॉर्ट टर्म पे, एकदम छोटे शॉर्ट टर्म पे ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है. और ओके, और हमने और एक चीज क्या देखी कि 15 मिनट का और 1 आवर का EMA है 51,600 पे, क्लोजिंग हुआ है अराउंड दिस एरिया 51,300. तो मैं क्या सोचूंगा कि अगर मुझे एक ट्रेड यहाँ पे मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एक फुल बॉडी कैंडल क्लोज हो जाए, या फिर मैं ये सोचूं कि यहाँ पे कोई एक अच्छा सा रेंज बन जाए, इसको ये करेंगे, समझो मुझे यहाँ पे कोई एक अच्छा रेंज मिल जाए ये एरिया में, ओके, 51,600 से लेकर 51,300. तो मैं क्या सोचूंगा और हाउ आई विल अप्रोच द मार्केट इज आई विल वेट ऑब्वियसली फॉर मंडे कि आई शुड नॉट बी trading if it's going to be a gap up. Why? Because my higher time frame EMAs are telling me to wait it out. Okay, so 51,600 is the level where I will try to wait. If it comes down, retraces, and if it comes around 51,300 or 350 or 400, that is when I will be thinking for a bullish trade, not a bearish trade yet, but that is where I will be thinking for a bullish trade अगर वो नीचे आता है तो. Because अगर हम ये ऑब्जर्व करें, यहाँ पे अगर देखें, हाँ, यहाँ पर देखें कि once the momentum picked up on the upside, आप देखेंगे कि how the market is breakout here, right? ये परसों का रेंज था, उसको भी ब्रेकआउट कर दिया. उसके बाद it is taking support at the 20 EMA. So now you understand why I like 20 EMA more.
So this is the reason कि 20 MA is used as a mean reversion point. So 20 MA पे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, फिर वापस 20 MA आया, फिर उसके बाद 20 MA एक बार हो गया, फिर मेरा टारगेट है कि मैं 200 EMA देखूं, ओके, बिकॉज सारी EMAs तो नीचे है, उनका कन्फ्लुएंस भी हो गया इधर, तो दिस इज लाइक अ वेरी गुड सिनेरियो कि ब्रेकआउट हो गया ऐसे. तो वंस I have a 20 EMA breakout and all the EMAs are coming together, then my target is the 200 EMA. Once it breaks above the 200 EMA, then I'm looking for the next level where rejection had happened or the gap fill. अगर ये हम यहाँ पे देखें 51,400, this was the exact gap that was created and that gap got filled. Okay. तो इनफैक्ट मुझे क्या 200 सोचना के है? नीचे कंसोलिडेट भी किया बिफोर ब्रेकिंग आउट. इट स्पेंड सम एग्जैक्टली, टाइम हाँ, देयर. एग्जैक्टली. यहाँ पे अगर हम देखें ठीक से, तो यहाँ पे थोड़ा 2-4 कैंडल यहाँ पे बना और फिर उसने राइट. ब्रेकआउट दिया. तो सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेड्स कि जब रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और जब ये 200 के EMA के इधर कंसोलिडेट होता है और ब्रेकआउट देता है, तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड मूव. ये कंसोलिडेशन के टाइम में आप गाना गाते हो और ब्रेकआउट के टाइम में आप चल बावड़े. वो तो चलो ठीक है. तो जब अगर 51,600 पे ओपन होता है और जब 51,350 और 400 पे आ जाएगा, तो ये 20 MA भी यहाँ पे आ जाएगा 400 पे. ओके, तो मंडे के लिए मैं क्या सोचूंगा कि अगर ये 20 MA के आसपास आता है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो ऑन लॉन्ग साइड की कॉल साइड पे अगर मैं देखूँ. वाई? बिकॉज वहां पे फिर मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और मेरा ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर हो जाएगा. ओके, so this is how I would try to approach in terms of the EMAs and in terms of the setup when I try to approach on Monday. और एक भी चीज देख सकते हैं, डेली में 20 में कहाँ पे. हाँ, तो अभी और एक चीज हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज हुआ है 51,300. तो अगर ब्रेकआउट देता है, समझो मंडे को गैप अप ओपन होता है, अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है 51,850 के ऊपर, देन देयर इज हायर चांस कि ये वापस 52,200 300 उसके ऊपर जाएगा. तो हमारे लिए हमारा सेटअप ये बता रहा है कि फ्रॉम हियर, फ्रॉम 51,300 टू 51,850 और 900, दैट इज अ लेवल वेयर वी हैव टू बी कॉशियस, और दैट इज अ लेवल वेयर वी विल हैव टू लुक फॉर स्कैल्पिंग ट्रेड्स. तो ये 400-500 पॉइंट या फिर ये 1% वाला जो रेंज है 51,850 से लेकर 51,300, ये जो 1% वाला रेंज है, ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए. अगर ये रेंज ब्रेक होता है 51,850 और 51,300, अगर ये रेंज कोई भी साइड ब्रेक होता है, तो दैट विल बी अ उस साइड का सिनेरियो व्हिच विल, हाँ, फिर वो साइड पे हमको पता है. फॉर एग्जांपल अगर 51,300 ब्रेक होता है या फिर नीचे होता है, तो हम क्या देखेंगे कि डेली पे 50 MA कहाँ पे, 50 MA है 50,950. दैट मीन्स लॉजिकली हम ये सोचेंगे कि अगर 300 ब्रेक कर रहा है, तो हम सोचेंगे कि 51 शुड बी आवर टारगेट ऑन द डाउन साइड. और ऊपर अगर लेट्स से 600 खुल रहा है, 600 के ऊपर मैक्स हम सोच रहे हैं कि 800-850 ये लेवल होना चाहिए. और अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये काइंड ऑफ सपोर्ट एज अ ये कर रहा था, ये अगर ये कैंडल का लो भी देखे हम, यहाँ पे भी अगर देखे, तो सेम सिचुएशन हुआ था कि ये 20 MA को उसने रिजेक्ट किया था. डेली पे अगर हम देखें, एक बार उसने ब्रेक कर दिया कन्विंसिंगली, उसके नीचे क्लोज कर दिया, तो 20 MA बिकेम द रेजिस्टेंस पॉइंट. फर्स्ट इट वाज अ सपोर्ट पॉइंट, राइट? सो मेनी टाइम्स इट ट्राइड टू सपोर्ट. पहले भी यहाँ पे भी एक बार ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद 20 MA को छुआ भी नहीं. यहाँ पे एक बार टच कर दिया, इमीडिएटली शार्प बाउंस आया, फिर कंसोलिडेट किया, उसके बाद कन्विंसिंगली ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज किया. एक बार उसने क्लोज किया तो उसका 20 बन गया उसका एक रिजेक्शन पॉइंट. हाँ, रेजिस्टेंस. तो अभी नेक्स्ट बार अगर वापस वो आता है, तो नेक्स्ट बार हम उसको एज अ रेजिस्टेंस पकड़ेंगे. वी विल टेक इट एज अ रेजिस्टेंस. If it breaks out about that, or if we get a full body candle, something like this, you get a full body candle closing below that. If you get a full body candle closing above the 20 MA, then we can say कि ठीक है, trend is again back to bullishness, and now we can again look for more higher sides, or maybe we can look for new all-time high also on that. हम निफ्टी में भी वैसे देख सकते हैं 51,850 के ऊपर क्लोज होना है एंड देन सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, देन वी कैन लुक फॉर अपवर्ड मूवमेंट. एग्जैक्टली. अगर नलिन जी देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट वही है कि हम बैंक निफ्टी से निफ्टी को कोरिलेट करें, तो सेटअप वाइज कोरिलेट करते हैं. यहाँ पे देखो 20 MA पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 MA ब्रेक किया बट क्लोज किया नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक किया क्लोज किया नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक किया क्लोज किया 20 MA के नीचे नहीं किया. इट डिड नॉट. सो
what is market clearly telling us? कि boss, Nifty is not weak at all. It is still protecting the 20 MA. So there was a very good chance that it will make a new all-time high, and it did. It did. So these are small observations that if we follow, we can get very, very good trades. I hope everyone is able to relate, or I hope everyone is able to understand. Guys, समझ में आ गया यहाँ पे, राइट? विजय जी, एक बार अपने कितना डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस होता है कि जो इंडेक्स 20 MA के नीचे है और जो इंडेक्स 20 MA के ऊपर है, उसमें जो फियर्सनेस है, इसमें बुलिशनेस का फियर्सनेस देखो, ये कैंडल्स देखो, और उसको ही कंपेयर करो आप बैंक निफ्टी से, उसका कैंडल देखो, ये कितने बड़े रेड है और निफ्टी में कितने छोटे रेड कैंडल्स है, राइट? अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 1-2% का मूव है। तो इसलिए अपसाइड भी ये छोटा कैंडल है, ये अच्छा कैंडल है, बट ये भी ओपन नेगेटिव ही हुआ था। ये इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी आई थिंक 450 के आसपास ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, इसलिए ये इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है। नहीं तो एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए, ये क्लोजिंग यहाँ पे था 51,000 पे, या फिर 51,300 पे क्लोजिंग था, और यहाँ से बस वो वापस 51,300 पे ही गया। वो गैप डाउन बड़ा हुआ था एंड देन इट रिकवर्ड एग्जैक्टली, देन इट रिकवर्ड फास्ट। So these are the small aspects. If you look at in terms of the setup, in terms of the process, if you follow this setup without judging कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, then it will give you a lot of ideas, it will give you a lot of perspectives wherein you will be able to trade in a better manner. But एक वो बोलते हैं ना, एक playing field होना चाहिए. When you come to the market tomorrow or Monday, then you should have a playing field. एक thought process होना चाहिए कि मेरा ऊपर का लेवल क्या है, मेरा नीचे का लेवल क्या है, मेरे को अगर 6 मारना है तो मैं 6 कहाँ पे मारूंगा, अगर मेरे को 4 मारना है तो मैं 4 कहाँ पे मारूंगा, अगर मेरे को सिंगल डबल लेना है तो उसके लिए मेरे को कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बिकॉज मेरे को पैसा तो बनाना है, मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो पैसा बनाना है, तो पैसा बनाने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है, या फिर वो दिन कैसे पैन आउट होगा, वो मेरे पास विजन है कि नहीं है, उसका मेरे पास होमवर्क है कि नहीं। अगर मेरे पास होमवर्क होगा तो ही मैं काम कर पाऊंगा। मैं बस मार्केट खुला है, हाँ गैप अप खुला है तो मैं ट्रेड ले लूंगा और मेरे को पैसा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी द केस। एक्चुअली हम अमेजोन पे 500 रुपए का सामान खरीदने के लिए ज्यादा रिसर्च करते हैं ट्रेड लेने से ज्यादा। 100%, दैट इज वेरी ट्रू एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट आल्सो। तो इसमें हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन इसने ट्रेंडिंग में ठीक है, बट साइड में जब मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे डांस करता है, हाँ तो वही है ना कि देखो मूविंग एवरेज अगर आसपास आ रहे हैं, ओके, देन यू हैव टू मेक अप योर थॉट प्रोसेस लाइक दैट कि भैया अगर ट्रेडिंग ये जो ईएमएस है उसके आसपास अगर मूव हो रहा है तो मुझे स्कैल्पिंग या फिर ऐसा थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा कि मैं ज्यादा पॉइंट या फिर ज्यादा ट्रेड्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मार्केट से। यही थॉट प्रोसेस हमको चेंज करना पड़ेगा कि अगर स्कैल्पिंग हो रहा है, आई मीन रेंज बाउंड है, फिर भी हम सोचते कि नहीं मेरे को बड़ा ही पॉइंट चाहिए, मेरे को बड़ा ही ट्रेड चाहिए, या फिर मेरे को बहुत सारे ट्रेड्स भी करने हैं, तो ये नहीं होगा। हमको एक थॉट प्रोसेस बना के चलना होगा कि ठीक है, दिख रहा है कि सारे ईएमएस अगर कन्फ्लुएंस में है, ईएमएस के आसपास डांस कर रहा है, तो हमको ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल, ये दोनों लेवल मार्क करने पड़ेंगे। जब हम लेवल मार्क करेंगे तभी हम उसको ट्रेड कर पाएंगे कि चलो ठीक है। अगर कंट्रोल उदय जोन बोलते हो आप, हाँ, ये हम कंट्रोल उदय जोन उसको लिखते हैं कि एक 200-300 पॉइंट का या फिर 400 पॉइंट का रेंज बन जाता है, और वो रेंज में यहाँ पे एक रेंज बना था, ये देखो, हाँ यहाँ पे कितने दिन तक वो रेंज बना था। तो ये जो डांसिंग होता है, तो ये डांसिंग के लिए हमको रुकना पड़ेगा। either you will have to be very very highly experienced trader to make money in this, or you will have to wait it out। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप सोचोगे कि मेरे को इसमें भी पैसा ही बनाना है और उसमें भी बनाना है और हर जगह बनाना है, नहीं। either you develop your skill to a level where you can control your emotions and you can stay out for that time, या फिर तुमको ये करना पड़ेगा कि मैं रेंज मार्क कर दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए 52,200 टू 52,400, ये 200 पॉइंट के रेंज में इतना डांसिंग हुआ है, कितने दिन तक डांसिंग हुआ है, 4-5 दिन तक डांस। बट जब आपको, अगर आप यहाँ पे पेशेंस रखोगे, यहाँ पे आपको ईएमएस क्लियरली बता रहा है कि भैया मेरे को कहीं नहीं जाना, आई एम वेटिंग फॉर द इवेंट टू बी गेटिंग ओवर, वंस द इवेंट इज ओवर देन आई विल गिव यू अ ट्रेंड। जैसे ही बजट खत्म हुआ उसके बाद मार्केट ने आपको ट्रेंड दिया, बट जब तक आप वेट नहीं करोगे
तब तक फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल लूज मनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी इन दिस एरिया। भाई बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग, हाँ चलो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट नहीं तो होता। जैसे आपने बोला कि यू विल वेट फॉर 51,600 के पास में, सो उसी तरह ओपन हाई या ओपन लो आता है, सो यूजुअली इट विल कम फ्रॉम वन ऑफ द क्रिटिकल कोई ईएमए के पॉइंट्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सो हाउ डू यू लुक एट दैट? एंड जैसे ओपन लो आया, मतलब अभी अगर कल का ही देखें तो आई एम श्योर बैंक निफ्टी में ओपन लो रहा हो, बराबर। so but many of the open lows were not tested, तो at what point of time and how do you decide कि आपको open low में जाना है कि नहीं जाना है, कि और it is a very strong support move और ये ऊपर जाएगा? राइट। सो अगर हम देखें, लेट्स से यहाँ पे अगर देखें, हम बोल रहे कि ओपन लो था, स्पॉट में भी ओपन लो था, फ्यूचर में भी था, बट यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूचर ने तो ऑलरेडी लगा दिया था ओपन लो। तो अगर फ्यूचर ने लगाया और स्पॉट नहीं लगा रहा है, तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस कि भैया ये जो हो रहा है, तो एक बार इसने लगा दिया है, तो मैं जब तक इसका लो नहीं ब्रेक करेगा, फ्यूचर का लो नहीं ब्रेक करेगा, तब तक आई विल नॉट ट्राई टू पुश माई सेल्फ टू गो फॉर अ पुट ट्रेड जस्ट इन एंटिसिपेशन कि स्पॉट को भी ओपन लो है तो मैं वो भी खेल लूंगा, या फिर मैं उसको भी ट्रेड कर लूंगा। एक बार इसने तो लगाया है, इसने ऊपर सपोर्ट लिया है, और ये एक बार लेवल ब्रेक कर दे, चलो ठीक है, मैं बुलिश नहीं रहूंगा, या फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे को कॉल में ट्रेड लेना है। मैं कॉल में मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर ही ट्रेड लेना शुरू करूंगा, या फिर सोचूंगा कि मेरा कॉल का ट्रेड इसके ऊपर ही अच्छा बनेगा। बट एटलीस्ट ये लेवल एक बार ये टेस्ट हो गया है, तो मैं बेरिश तो भी नहीं होऊंगा, मैं ये सोचूंगा कि चलो ठीक है, अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये कन्फ्लुएंस कर लेते, चलो 50,600 फ्यूचर का लो है, बराबर, स्पॉट ओपन लो बता रहा है आपको, राइट, कि 50,450 ये ओपन लो है स्पॉट का। इसमें नहीं दिखा रहा एक्चुअली, बट ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देखते हैं कि 50,450 है, बट जब फ्यूचर ने ओपन लो लगा दिया, स्पॉट नहीं लेने लगा है, तो अगर मुझे बेरिश होना है तो मेरे को ये कैंडल लो के नीचे ही बेरिश होना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे को पुट लेना पड़ेगा तो मेरे को इसके नीचे ही लेना पड़ेगा। मैं आई कैन नॉट थिंक कि लेट्स टेक अ पुट हियर आल्सो, लेट्स टेक अ पुट हियर ओके, आल्सो, लेट्स टेक अ पुट हियर आल्सो, नहीं। अगर मेरे को ओपन लो के लिए प्ले करना है तो एटलीस्ट दिस हैज टू ब्रेक एंड दिस हैज टू कम ओके, डाउन। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइज। ओपन लो पे बहुत वीडियोस दिए हुए हैं, एंड बट दीज आर नुआंसेस जो आपको वीडियोस में यूजुअली नहीं मिलेंगी, सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन at this point, please put it over here. Otherwise, we'll move forward. इसी तरह open high के लिए, how do you look at that? Which is हाँ, तो ये जो सेटअप बना था ये इंटरेस्टिंग था, मैं आपको okay. बताता हूँ कि ठीक है। अभी ये देखो 51,000 कॉल, इसमें क्या बना था 25 जुलाई को, थोड़ा बड़ा ओपन है। करेंगे, साफ नहीं आ हाँ, रहा। ऑलमोस्ट ओपन है बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीरो पॉइंट Right. जीरो फाइव है, तो वी कैन Correct. निग्लेक्ट दैट और वी कैन इग्नोर दैट, ठीक है। तो ये है 520, बराबर। तो हाउ आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट स्पॉट प्राइस विद दिस ओपन हाई। ओपन हाई तो इसमें भी था, पुट में भी था। अगर आप देखें 50,700 का पुट, पुट में भी था, ये पुट में, पर ये पुट कहाँ पे गया, उसके बहुत पास गया, 428। ओपन हाई था 450 का, तो बस 22 Right. पॉइंट से Right. छोड़ा है। ओके, तो इसलिए मैं आपको जब बोला कि फ्यूचर ने तो ओपन लो लगा दिया बट स्पॉट ने नहीं लगाया, तो मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये कन्फ्लुएंस देखना है कि ऑप्शन ने कैसे बिहेव किया जब फ्यूचर ने अपना ओपन लो लगाया था, और उसके बाद क्या Mm-hmm. हुआ। अगर हम ये देखें, ये है वीवैप, बराबर, इसका Right. ऑप्शंस का वीवैप है। एक बार उसने वीवैप के ऊपर गया, उसके बाद वीवैप के ऊपर गया, आया क्या, नहीं आया। No. तो व्हाट शुड आई बी लुकिंग एट, शुड आई बी लुकिंग एट ट्राइंग टू गेट दिस पुट अगेन एंड अगेन, नहीं। एक बार ये कैंडल हो गया, उसके बाद मेरे को पुट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं। क्यों, क्योंकि पुट वीवैप के ऊपर जा ही नहीं रहा। पुट अगर हाँ, वीवैप के उस ऊपर जाके रिजेक्ट मार रहा है, तो मेरे को ये देखना है कि कॉल क्या कर रहा है। Mm-hmm. तो अगर मैं उसको देखूं, तो देखो दो चीज है, 50,700 पुट पे ओपन हाई है, बराबर, और 51,000 कॉल पे परसों का ओपन हाई, दोनों को ओपन हाई है। ओके, Okay. ये उसके पास जाके आया, ये उसके पास जाके आया, उसके बाद उसने रिजेक्ट करना शुरू किया, फिर वीवैप नहीं तोड़ रहा है। तो मुझे एक सेकंड के लिए, या फिर फॉर द टाइमिंग फॉर माई ट्रेडिंग डे, फॉर दैट डे,
I should not be looking at put till the time it is not crossing the VWAP or it is not giving me a clear close above the VWAP. बराबर, ये एक थॉट प्रोसेस मैंने बना लिया वो दिन के लिए. अब मेरे को क्या सोचना है कि मेरे को कॉल लेना है. अगर मेरे को कॉल लेना है तो मैं कब लूंगा, जब वो VWAP के ऊपर जाएगा तब. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, बस यही सिंपल थॉट प्रोसेस रखना है. पुट एक बार जाके आया, ओपन हाई नहीं लगा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, बट मेरे को वापस पुट कब लेना है, जब अगर वो ये लेवल के ऊपर जाएगा. अगर ये देखे यहाँ के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हो रहा है, 365 के ऊपर उसका क्लोजिंग ही नहीं हो रहा है, तो एक कोई सेंस नहीं बनेगा ये कैंडल के बाद कि मैं उस पर वापस ट्राई करूं. ठीक है, और उसके बाद तो भी मैं मूविंग एवरेज भी डाउनवर्ड हो गया आपके सारे. सिंपल सिंपल वो तो है, हुई है. तो ये पॉइंट हो गया कि मेरे को अगर ये पुट लेना है आगे के टाइम, तो 365 के ऊपर क्लोज करेगा 5 मिनट का कैंडल तो ही मैं पुट लूंगा. बराबर, तो 1 मिनट के लिए मैं पुट साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा ब्रेन उस थॉट प्रोसेस से खाली हो गया. क्यों? क्योंकि 365 आएगा तभी मेरे को वो देखना है, नहीं तो मेरे को उसके साइड देखना ही नहीं. अब मेरे को देखना है कि कॉल अगर ऊपर जाएगा कि नहीं. कॉल विवेक के ऊपर कब गया, यहाँ पे गया. बराबर, तो यहाँ पे मेरा रिस्क वर्ड अच्छा बन जाता है कॉल में. क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा डेस्टिनेशन ये है, 520 मेरा डेस्टिनेशन है. ओके, मेरे पास थॉट प्रोसेस क्या है कि मेरा ये कॉल वीवैप के ऊपर जाना चाहिए और पुट वीवैप से नीचे आना चाहिए. ये 11 बजे नीचे है, इसको देखते हैं हम ये कितने बजे नीचे है इसके वीवैप से. बराबर, आपको पुट ने 10 मिनट पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि भैया मेरे को ऊपर नहीं जाना है, मेरे को नीचे जाना है. कॉल ने आपको 11 बजे इंडिकेशन दिया जब ये पुट ने इसका ये ब्रेक करने शुरू कर दिया. बराबर, ये जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे, इसको हम छोटा सा डबल टॉप भी बोल सकते हैं, बट ठीक है. तो जब पुट ने 324 ब्रेक कर दिया, तो मेरे को क्या सोचना है, कॉल देखना है. कॉल मेरा अगर वीवैप के ऊपर जाता है, मैं वीवैप के ऊपर ले लूंगा, फुल बॉडी बन गया है, मेरा स्टॉप लॉस है वही कैंडल कर लो. कॉल में अगर देखते हैं हम, ये कैंडल है, ये कैंडल का लो है 245. समझो मेरा एंट्री वीवैप के ऊपर हुआ, ये कैंडल मैंने क्लोज होने दिया 286, समझो मैंने 290 पे एंट्री किया. अब ये इजी ट्रेड है, इसलिए सब लोगों को बोलेगा हाँ तुम तो हैंडसेट में बता रहे हो, इधर बाय करो इधर सेल करो, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सेटअप, इन टर्म्स ऑफ एंट्री, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस. मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को 200 पॉइंट ये ट्रेड में चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट थॉट प्रोसेस वाइज मैं कैसे सोचता हूँ मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे को ट्रेड लेना है या फिर उसको मेरे को लॉजिकली फिट करना है मेरे थॉट प्रोसेस में, तो मैं कैसे फिट करूंगा मेरे सेटअप के अराउंड. तो दिस इज हाउ आई वुड ट्राई टू वर्क आउट द ट्रेड. तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ 285 टू 90 पे, राइट, फिर उसने 359 लगाया. तो और एक चीज ऐसी है, समझो अभी ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है ये ऑप्शन. बराबर, इसका कल का वीवैप कितना है, 355. कल का वीवैप यानी परसों का वीवैप, दैट इज 25th का वीवैप है 355. तो अगर ये वीवैप ब्रेक करता है, तो मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, कल का वीवैप. बराबर, प्रीवियस डे वीवैप, बिकॉज इट कंसोलिडेटेड हियर एंड इट क्लोज्ड राइट अराउंड द वीवैप. तो ये मेरे लिए एक क्या बोलते हैं ना, एक स्प्रिंट हो गया कि मैं 290 से 350 तक का स्प्रिंट है, मेरे को वो स्प्रिंट लेना है, क्योंकि वो मेरे को क्लियर डायरेक्शन बता रहा है कि अगर 290 के ऊपर जाता है तो मेरा स्प्रिंट 350 तक सक्सेस हो सकता है. बराबर, तो ये छोटा ट्रेड मैंने देख लिया. एक बार वो वापस उसके ऊपर चला जाए, समझो 360 370 के ऊपर जाए, उसके बाद मेरा अगला स्प्रिंट कहाँ पे होना चाहिए एज अ सेटअप. मेरा 100 मेरे सारे इमेज भी ब्रेक हो गए. बराबर, मेरा ये जो कंसोलिडेशन था 370 वाला वो भी ब्रेक हो गया. उसके बाद मैं क्या सोचूंगा, मेरे को ओपन हाई के लिए गन करना है. अभी ओपन हाई किधर मेरा 520. बराबर, मेरा डेस्टिनेशन है अगला 520, और कोइंसिडेंटली बोलो या फिर सेटअप वाइज बोलो, मेरा 200 भी एग्जैक्टली उधर ही आता है. मेरा जो 200 EMA है सेटअप वाइज, एक बार मेरा 100 EMA ब्रेक कर दिया उसने कन्विंसिंगली, उसके बाद मेरा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, 520. तो ये तो आपका मोमेंटम ट्रेड का एक एग्जांपल है. दिस इज यस, ये तो स्कैल्पिंग वाला हो गया, ये 50-60 पॉइंट ये स्कैल्पिंग वाला हो गया, और ये हो गया मोमेंटम वाला एग्जांपल. चलो लकीली मार्केट इतना अच्छा था, लकीली मार्केट इतना अच्छा था इसलिए ऐसा ट्रेड मिल गया, रोज रोज नहीं मिलता. बट अगर मेरा थॉट पर, हाँ, अगर इस मोमेंटम ट्रेड को हम ब्रेक डाउन करेंगे, सो लेट्स जस्ट स्टे ऑन द मोमेंटम, बिकॉज ये वेबिनार हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग की ओर फोकस था. एंड वी स्पोक, सो इसमें वो आप जो कह रहे हैं कि
इसमें हाउ विल बी ब्रेक इट डाउन कि इसको आप ईएमएस का क्रॉसओवर कैसे देखेंगे या वीवैप के ऊपर जा रहे, इफ यू कैन जस्ट गो फ्रॉम दैट। डेफिनेटली। हाँ, देखो सिंपल एक एग्जांपल, हमने क्या सोचा कि कल का वीवैप है, ओके, कल डाउन ट्रेंड डे था, फॉर एग्जांपल 25 तारीख को डाउन डाउन ट्रेंड डे था, या फिर कंसोलिडेशन हुआ और वीवैप पे क्लोज हुआ। तो ये आपके इसमें बोलते हैं ना, मार्केट प्रोफाइल में इसको एक टर्म है कि सेलिंग आया, बराबर, सेलिंग आया, उसके बाद न्यू सेलिंग इज नॉट कमिंग, one thing, राइट। new selling is not coming. That means the seller who had sold from the higher side, now he is exhausted or he is getting tired, बराबर, he is getting tired. अब इसको हम फ्यूचर से कोरिलेट करते हैं। हम कैसे बोल रहे हैं, सेलर इज गेटिंग टायर्ड, इसको बोलते हैं। ये डाउन ट्रेंड डे था, बराबर, ऊपर आए, फिर नीचे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन तो हुआ, इट वेंट डाउन, सेलर ट्राई टू पुश इट बिलो 50,600. आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ 50,600 ऑल्सो लेटर। बट ये पकड़ते हैं कि सेलर अभी भी एक्टिव था, ये वीवैप के ऊपर भी क्लोज किया, फिर भी सेलर एक्टिव था, उसने गैप डाउन किया, उसने नीचे भी पुश किया, नीचे पुश करने के बाद उसको ज्यादा और पुश नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे अगेन ही केम बैक, ही ट्राई टू पुश बिलो 50,600, नहीं हुआ, बराबर, सेलर ने पुश नहीं कर पाया, तो बायर ने क्या किया, भैया अब तेरा काम हो गया, अब हमको आने दो, बराबर। नाउ व्हाई इज 50,600 इंपॉर्टेंट, लेट्स गो टू द चार्ट, डेली चार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम दूसरा वाला फ्यूचर देखते हैं, समझो जून या मई वाला फ्यूचर अगर देखते हैं, या फिर आप कंटिन्यूस फ्यूचर भी देखते हैं, तो इलेक्शन के दिन 50,600 पे ओपन हुआ था, स्पॉट पे शायद देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखें, इसका देखिए हाई क्या है, इलेक्शन के दिन 50,600, बराबर। तो यहीं से बाउंस आया मार्केट क्या है। बोल रहा है, हाँ मार्केट क्या बोल रहा है कि ये मेरा पहले का रेफरेंस लेवल है बॉस, यहाँ से मैं बुलिश हुआ था, यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं, यहाँ से मैं बुलिश हुआ था, यहाँ से मैंने 53,000 तक लेके गया था मार्केट को। तो अगर ये मेरे मेरे लेवल पे आ रहा है, या फिर ये मेरे पकड़ में आ रहा है, तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वाई, बिकॉज नाउ इफ माई level is coming after 1 month or 1.5 months, this is my perfect level where I can go long again with a very small stop loss, then this should be the perfect level for me to go long, बराबर। पोजिशनल लेवल पे भी आपको हो गया। आप अगर मार्केट प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल। तो बस मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि ये लेवल एक बार आ गया, तो अगर यहाँ से बायर पुश कर रहा है और कल के हाई के ऊपर भी जा रहा है 50,950, अगर हम स्पॉट पे भी देखें कि वहां से ब्रेकआउट आया होगा, आई शुड सस्पेक्ट दैट, और मोस्टली वैसे ही होगा। हाँ, ये देखिए, बराबर 50,950 कल का हाई था, जैसे कल का हाई ब्रेक किया। अभी देखो एकदम सिंपल मार्केट मेथोडोलॉजी के हिसाब से पकड़ते हैं कि 2-4 दिन से मार्केट नीचे है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, बराबर। हम चेंज ऑफ ट्रेंड या फिर थोड़ा सा बुलिशनेस कब पकड़ते हैं, हम क्या करते हैं, वेट करते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर, कोई भी स्विंग ट्रेडर होगा दैट दे माइट रिलेट टू बी, कि अगर कोई कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, ओके, अगर मार्केट वो रेड कैंडल का हाई निकाल देता है, खास करके डेली बेसिस पे, तो व्हाट डू यू से कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगा, या फिर यहाँ से चेंज ऑफ, एटलीस्ट ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, चेंज ऑफ ट्रेंड होगा। ये एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ, 1230, बराबर। अपना जो ऑप्शन है वो कहाँ पे चेंज हुआ, ये 1230, 1240, बराबर। सो एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू कॉन्फ्लुएंस। और एक चीज, मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि एमेचर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट, बराबर। आप शुभशीष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसका भी वीडियो देख सकते हो, ही इज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। वो हमेशा एक चीज बहुत अच्छे से बोलता है, व्हाट ही सेज इज कि व्हेनेवर यू गेट अ ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे हाई, और या फिर व्हेनेवर यू गेट अ हाई ब्रेकआउट, या फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आफ्टर 1230, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इट विल सस्टेन, दैट ब्रेकआउट विल सस्टेन। सो जब मैं ये सोचता हूँ, तो मेरा पॉइंट ये भी है कि ये 12:30 के बाद जब ब्रेकआउट हो रहा है, नेक्स्ट डे का हाई निकाला है,
तो दैट इज वेयर इट गिव्स मी, इट्स लाइक अ गोल्डन, वो बोलते हैं ना पूरी कायनात लगी है इसको ऊपर लेके जाने के लिए. तो दिस इज द दैट काइंड ऑफ अ सेटअप, और दिस इज द दैट काइंड ऑफ द सिचुएशन. और यहाँ पे इसलिए फिर हमको स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है हमारे पास, एकदम 20 में ब्रेक कर दे, एक बार 20 में सपोर्ट ले लिया. यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें ऑप्शन, एक बार वीवेप टच कर दिया, उसके बाद ऊपर आया 20 में को सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2-3 कैंडल बने, 20 में सपोर्ट लिया और उसके बाद इट मूव्ड हायर. So from here, if I enter at 370, 380, my stop loss should be around this 350, 55, and then I should be riding it towards this 200 EMA. So That is 12:30 520. is fixed time or it is linked to Europe Open? क्योंकि Europe It is linked to 12:30 या Europe 1, Open also. It right? is linked to Europe Open also. Yes. So Mostly जब European 1:30 पे markets. खुलता है, जब 1:30 खुलता होगा तो 1:30 के टाइम पे we can expect that sort of a movement rather than 12:30. Yes. Yes. वो 130 तो एक्चुअली इसी वजह से होता है, बिकॉज वो टाइम बोलते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, उनका टाइम चेंज होता है ना, डे लाइट सेविंग हाँ टाइम टाइम, वर्सेस नॉर्मल. एग्जैक्ट, हाँ डे लाइट सेविंग, हाँ वो तो डे लाइट सेविंग के. बट मार्केट क्या बोलता है कि 12:30 इज अ गुड टाइम फॉर मी. ओके, ऐसा है. ओके, गुड. सो अभी तो 10 मिनट बचे हैं विजय जी. सो आई जस्ट वांटेड हाँ. टू फोकस लिटिल बिट मोर ऑन कि आप ऑप्शन बाइंग जो करते हैं तो इट इज अ वेरी इंटेंस मॉनिटरिंग. तो आप अपना स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं ड्यूरिंग द डे? बिकॉज ऑप्शन बाइंग में हर टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं रहती. जैसे ऑप्शन सेलिंग में नहीं तो रहता. आपने ऑप्शन सेल करके यू आर मॉनिटरिंग, यू आर वेटिंग फॉर थीटा दिखे. बट ऑप्शन बाइंग बराबर. में हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आप कैसे डिसाइड करते हो कि कब ट्रेड नहीं लेना है? हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है. देखो मैं आई वुड से कि मैं एवरीडे गलती करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करता. एंड आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट, मैं रोज गलती करता हूँ. ओके. ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बहुत टाइम टारगेट भी आएगा. बट मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि समझो मुझे कुछ सेटअप में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अभी ये ट्रेड अगर ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ब्रेकआउट में ले लूंगा. आई विल टेक दैट ट्रेड. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी माय रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी मच इन कंट्रोल. ओके. ये ब्रेकआउट में ले लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है. ये एक बार काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर्स हो गया, यहाँ से रेड कैंडल आ गया, उसने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, मैं रुक जाऊंगा, मैं वेट करूंगा. ओके. अगर नेक्स्ट टाइम वापस आता है तो नेक्स्ट टाइम मैं लूंगा. बट अगर सेकंड टाइम भी फेल हो जाता है फिर मैं रुक जाऊंगा. एक ट्राई तो बनता है, एक ट्राई तो मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा. बट दूसरी बार भी अगर मैं फेल हो गया फिर मैं रुक जाऊंगा. तो दिस इज माई अप्रोच. बट बहुत लोगों का क्या होता है कि उसमें रिवेंज होता है, अरे मैं 2 बार हार गया, अब तो खत्म, अब तो मैं, मेरे जो समझो 50,000 10,000 जो भी लॉस हुआ, अब मेरे को वो वापस चाहिए. बट व्हाट आई थिंक इज कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रहा है ना, तो मैं इसके लिए इधर वेट करूंगा. यहाँ पे मेरे को एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा, या फिर यहाँ पे मुझे ज्यादा सेटअप मेरा और रिफाइन हो जाएगा कि चलो ठीक है, ओके. इसमें मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे रुकूंगा, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाए फिर मैं लूंगा. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये रेंज मार्क कर दूंगा, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, 250 और 350, ये 100 पॉइंट के रेंज में मुझे कुछ नहीं करना. ओके. इस 100 पॉइंट के रेंज में मैं रुक जाऊंगा. और इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि आप ओपनिंग कैंडल में ही ट्रेड ले लेते हो एंड यू कैप्चर लाइक 50-60 पॉइंट्स, और कभी कभी उल्टा भी होता है. सो हाउ डू यू डिसाइड यस. कि कब आपको वो ट्रेड लेना है? तो वही है क्योंकि वो कि तो जैसे मतलब हमने, माइक्रो सेकंड में आप ले लेते हो उसको. बराबर, तो वो इसी बेसिस पे होता है कि मैंने होमवर्क क्या किया है, मेरा पास डे का. आज जैसे मैंने बोला कि मैं अगर 600 पे आएगा तो क्या करूंगा, 800 पे जाएगा तो क्या करूंगा, या फिर 300 पे जाके क्या करूंगा. ये अगर मेरे को माइंड में क्लैरिटी है कि अच्छा ये चीज पे मेरे को ऐसे रिएक्ट करना है, तो मेरे को फेलियर का डर नहीं है. मेरे को फेलियर का डर नहीं होगा. वाई? बिकॉज मेरे थॉट में, मेरे माइंड में क्लैरिटी ऑलरेडी है कि ये लेवल पे आएगा तो मैं ऐसा ही बिहेव करूंगा, या फिर मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा. फिर वो गलत हो जाए, नो प्रॉब्लम, मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा. बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो ट्रेड काम कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर खुल जाए, लेट्स से 700 800 पे खुल जाए, तो मैं एक बार सोचूंगा कि चलो अगर पुट पे ओपन हाई आ गया, या फिर पुट पे अगर कुछ दिख रहा है, तो मैं एक बार ट्राई करूंगा कि पुट बाय कर लूंगा. या फिर कॉल पे ओपन हाई दिख रहा है, तो मेरे उसके लिए वेट करूंगा, नीचे आने दूंगा, उसको कंसोलिडेट होने दूंगा, फिर मैं कॉल में जाऊंगा. तो वो दोनों तरीके देखो. when I am trading in options, I have to be prepared for both the sides. मैं बस राइट. एक ही व्यू लेके नहीं चल सकता कि हाँ बुलिश है तो बस बुलिश ही, अब खत्म, दूसरा कुछ सोचूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं. आई एज एन ऑप्शन ट्रेडर आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द साइड्स.
So So you switch sides very quickly. dynamically, yeah, dynamically that thought process should be there always, कि ये सोच है वो हमेशा होनी चाहिए. बहुत लोग मैंने ये देखा है कि एक बार उन्होंने दिन में सोच लिया कि आज तो मेरे को कॉल ही बाय करना है, तो वो कॉल जीरो भी हो जाए फिर भी वो कॉल ही बाय करते रहेंगे. और स्टॉप्स के ऊपर जैसे आपने बोला कि आप कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लगाते हैं, सो योर स्टॉप्स आर स्ट्रक्चरल रादर देन पॉइंट वाइज. पॉइंट वाइज भी होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, दोनों भी होता है. ओके, तो दोनों किस थॉट टाइम पे प्रोसेस कैसे में दोनों भी डिसाइड है. करते हो आप? हाँ, जब स्कैल्पिंग है तो फिर उतना स्ट्रक्चरल नहीं होगा, वहां पे पॉइंट वाइज होगा कि मेरा ओके मैं आरआर कैलकुलेट कर रहा हूँ दिमाग में कि अगर मैंने ये ओके ट्रेड लिया है, 20 पॉइंट पीछे जाएगा तो मेरे को कितने लॉस होने वाला है, और 40 पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है. कितना? बट पहले मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं 20 पॉइंट लूज करने वाला हूँ, वो भी खासकर ओके स्कैल्पिंग में. ये अगर ये मैं मोमेंटम वाला भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं माइंड में ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर मैं 900 क्वांटिटी ले रहा हूँ और मेरा 30 पॉइंट जाता है, 27,000 लॉस होता है, कोई इशू नहीं. ये मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ. बट बहुत लोगों का इशू वही हो रहा है कि मेंटली प्रिपरेशन नहीं है. पहले पहले ये है कि अरे मैंने लिया तो ये ऊपर ही जाना चाहिए. ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस राइट. नहीं है. जब मेरे पास मेंटल प्रिपेयर्डनेस है कि मेरा वर्स्ट क्या है, कि मेरे को ये ट्रेड में खोना कितना है, और पहले ये ऑप्शन मैं बाइंग एक्सेप्ट कर में, लूं. राइट, तो इसमें ऑप्शन बाइंग में बिकॉज थीटा इज ऑलवेज अगेंस्ट यू, तो आप क्या, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेते हो एंड हाउ डज इट चेंज विद एक्सपायरी से कितना दूर है? 90% आई ट्रेड विथ एट द मनी. तो एट 300 द वाला मनी. ऑप्शन जो होता है एट द मनी, ऐसा मैं करता हूँ कि थर्सडे, फ्राइडे, मंडे एट द मनी, बराबर. राइट. ट्यूसडे, ट्यूसडे समझो, चलो थर्सडे, फ्राइडे और मंडे मैं 300 वाला ऑप्शन ट्रेड करूंगा. ओके. ट्यूसडे को मैं 200 वाला ऑप्शन करूंगा, और वेनसडे जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मैं 150 वाला ऑप्शन ट्रेड करूंगा. तो डेल्टा लगभग तो बराबर ही हो जाता होगा उसमें बराबर ही हो बिकॉज, जाता है. राइट. यस, एट द मनी होता राइट. है मोस्टली. राइट. हाँ, राइट. बहुत ही रेयर सिनारियो होता है कि ओटीएम में ट्रेड करूं या फिर कभी इन द मनी में ट्रेड करूं. अगर प्रीमियम बहुत ही कम है तो मैं इन द मनी ट्रेड करूंगा. अगर ओके. प्रीमियम बहुत ज्यादा है, समझो अभी इसके टाइम पे था, बजट के टाइम पे, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा था तो थोड़ा ओटीएम भी जाना पड़ता है. वी आर एट द क्लोज नाउ, जस्ट लेट्स एक बार मैं क्विकली देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट रह गया है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कमेंट्स. या तो इसमें एक चीज ये थी कि एक अच्छा क्वेश्चन बीच में था उसमें कि आप जब डिसाइड करते हो कि आपको स्विच करना है फ्रॉम कॉल टू पुट, व्हाट आर यू लुकिंग एट ऑन द चार्ट्स, और इट इज मोर ऑफ इंस्टिंक्ट एंड होमवर्क? क्योंकि अचानक से व्यू देखिए, चार्ट चेंज देख के तो चेंज नहीं हो जाएगा, बिकॉज चार्ट इज प्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन, दैट इज द रीजन आपने वो ट्रेड लिया. बट बराबर. व्हाट मेक्स यू चेंज योर व्यू, और आप क्या कैसे लेते हो हाँ, तो उसको? उसके पीछे एक ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन इज वन पॉइंट, देन थॉट प्रोसेस इज वन पॉइंट, कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा. ये अगर मैं पहले डिसाइड करके रखूं या फिर ये पहले मेरे थॉट में होना चाहिए, मैं इंस्टिंक्टिवली नहीं कर सकता उसको. मेरा इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि इमीडिएटली अरे ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा करूंगा. बट मेरे को आई हैव टू ओके. थिंक इन दैट वे. फर्स्ट आई हैव टू थिंक इन दैट वे सो दैट आई कैन रिएक्ट इन ए शार्पर मैनर. अगर वो मेरे थॉट में ही नहीं है, मेरे जहन में ही नहीं है, और मैं इमीडिएटली उसको करूँ तो वो गलत हो सकता है. तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये फुल बॉडी कैंडल आ रहा है, इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, बट इसको फॉलो अप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे को देखना है. या फिर ओके, फॉलो. आजकल बहुत बार ऐसा होता है, हाँ, आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ट्रेंडिंग मिल जाएगा बट नीचे वॉल्यूम नहीं मिलेगा, आपको वॉल्यूम डायरेक्टली ऊपर मिलेगा. दैट मीन्स आपको हाई पे वॉल्यूम मिलेगा. तो हाई पे वॉल्यूम मिलेगा तो दैट मीन्स दैट पलटने देयर वाला. कैन बी अ वेरी, हाँ, अलर्टनेस वहां पे ज्यादा होना पड़ेगा. तो वहां पे मैं ये राइट. सोचूंगा कि अगर ये कैंडल फिजल आउट हो जाता है, दैट मीन्स द बायर्स हैव बुक देयर प्रॉफिट एंड नाउ थोड़ा नीचे भी आ सकता है. तो दैट इज राइट. हाउ आई विल रिएक्ट इफ दैट सिचुएशन अराइजेस. ओके. बट अगेन मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो सिनारियो क्या चल रहा है, वहां पे मार्केट क्या चल रहा है, हम सिनारियो से अवेयर अवेयर होना बहुत जरूरी है. यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द सिनारियो दैट इज गोइंग ऑन. विजय जी, वी आर एट द एंड ऑफ द टाइम, और क्वेश्चंस तो यस. बहुत हैं, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल कलेक्ट द क्वेश्चंस एंड मे बी शेयर इट विद यू, फिर बाद में बाद आपसे में हम शेयर कर सकते उसका हैं, रिस्पॉन्स ले लेंगे. डेफिनेटली. बट एट द चलेगा, बाद एंड, में भी अपन लुकिंग सेशन बैक, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. लुकिंग बैक, इज देयर एनीथिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने क्या सीखा है एंड हाउ इज इट शेप्ड योर ट्रेडिंग फिलॉसफी?
अगर आप अपना पिछला 8 साल का जर्नी देखेंगे तो व्हाट डू यू डेफिनेटली से? आई वुड से कि ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन combined with money management, combined with a good thought process. तो ये सारी एस्पेक्ट्स अगर हम क्लियरली रखें कि सबसे एकदम इम्पोर्टेंट तो रिस्क मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है. देखो, वी आर ट्रेडिंग इन सच एन एटमोस्फियर वेयर एक एक कैंडल 700 पॉइंट का आता है. अगर हम ये देखें कैंडल, ये इवेंट वाला कैंडल है, ये 600-700 पॉइंट का कैंडल है. यहाँ पे अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो दिस वन कैंडल कैन वाइप आउट योर एंटायर ट्रेडिंग करियर. इनफैक्ट हमने तो इजीली, निफ्टी एकदम में भी इजीली. 5 मिनट में 400 पॉइंट का कैंडल देखा है. पहले तो बैंक निफ्टी में होता था, अब तो निफ्टी में भी देख रहे हैं 400 निफ्टी में पॉइंट, भी होता 500 है. पॉइंट. एग्जैक्टली. तो व्हेन मार्केट इज मूविंग इन सच अ डायरेक्शन और मार्केट इज मूविंग सो वायलेंटली, या फिर जो इंडेक्स इतना बड़ा हो रहा है आज, पहले निफ्टी में सपना होता तो लोगों का 400 पॉइंट का सपना. इट यूज्ड टू बी अ ड्रीम कि अरे मेरे को निफ्टी, आई रिमेम्बर 2018-19 कि 40 पॉइंट मिल गए निफ्टी में तो लोग डांस करते थे. अरे वाह, निफ्टी में 40 पॉइंट मिले, बहुत बड़ी बात है. आज निफ्टी 400 पॉइंट मूव हो रहा है. तो द डायनेमिक ऑफ द मार्केट इज चेंजिंग अ लॉट. सो वी एज ट्रेडर्स हैव टू चेंज एज पर दैट. फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी जब 45,000 का है तो 1% इज 450 पॉइंट. बट अभी बैंक निफ्टी है 51,200, तो उसका 1% है 510 रुपए. दैट मीन्स 60 पॉइंट का उसको में डिफरेंस हुआ है. परसेंटेज वाइज आप सोच रहे हो 45 से 51 तक 10% का डिफरेंस है ना. तो प्रीमियम में भी तो 10% का डिफरेंस होगा. तो हमारे थॉट प्रोसेस में है क्या 10% का डिफरेंस? ये हमको सोचना जरूरी है, या फिर ये अपने आप को पूछना जरूरी है कि मेरे थॉट प्रोसेस में उतना डिफरेंस आया क्या, या फिर मैं इंडेक्स को या फिर मेरे ट्रेड मैनेजमेंट को उस हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. थैंक यू विजय जी. थैंक्स ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग. इट इज सो ग्रेट कि आखिरी तक ऑलमोस्ट 300 280 पीपल आर देयर. मेरे को तो ऐसा है एक्सीलेंट कि मैं सेशन. और 2 घंटा भी बात करके और कुछ बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ, बट ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई जस्ट लव ट्रेडिंग एंड आई लव टीचिंग ऑल्सो. वी विल इट इज हैव अ माई फॉलो अप पैशन टू सेशन, राइट? ऑलवेज. एक कई लोग पूछ रहे हैं कि आपका प्रॉप डेस्क ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इज देयर फोन नंबर और डिटेल जहाँ पे? I'll be very honest, हमारा छोटा सा prop desk है and we don't have any kind of vacancies as of now. If there is Okay. anything, I'll definitely share it Sure. everywhere. Okay. All right, Vijay ji, thanks a lot. Viewers, thank you so much for joining in. And from the entire community of FTU Trading and Momentum Group, I thank Vijay for joining us.